We shall start with some minutes of meditation music.
Namaskar, everyone. We extend a warm welcome to all of you gathered here today to mark the 66th Foundation Day of Sri Aurobindo Ashram, Delhi branch. This ashram sprang into life on the 12th of February 1956 with this following message of the Mother. Let this place be worthy of its name and manifest the true spirit of Sri Aurobindo's teaching and message to the world. This occasion holds a greater significance for us as we celebrate Sri Aurobindo's 150th birth anniversary this year on the 15th of August. It was with joy that the Sri Aurobindo fraternity around the world, not only India, witnessed the 73rd Republic Day parade recently on the 26th of January. This tableau before us, glorifying Sri Aurobindo's and his works, was set afloat along Rajpath, planting the significance of Sri Aurobindo's life, his work, his vision and mission on the national front and the national consciousness. Another moment of pride for us was when the head of our ashram, Tara Johar, our dear Tara Didi, was conferred the Padma Shri as part of this year's Republic Day celebrations. Today, we are pleased to have in our midst Shri Govind Mohan Ji, Secretary, Ministry of Culture, Shri Ram Bahadur Rai Ji, President of the Indira Gandhi National Centre for the Arts, also known as IGNCA, Professor Dr. Ramesh C. Gaur, Dean, IGNCA, who are here to hand over the tableau on the life and works of Sri Aurobindo to Sri Aurobindo Ashram, Delhi branch. We also warmly welcome our special guest, Lieutenant General Dr. Daljit Singh, and Justice Jagdish Singh Kehar, the 44th Chief Justice of India. It now leaves for me to invite Taradi, Shri Govind Mohan Ji, Shri Ram Bahadur Rai Ji, Professor Ramesh Gaur, and Lieutenant General Dr. Daljit Singh
and all others, escorted by Bijlani ji and Vijay ji, to light the lamp and inaugurate this event. Let us all join together in prayer with an invocation through Sri Aurobindo's Gayatri Mantra. It is now my pleasure to welcome Sri Govind Mohan Ji to take his place at the rostrum and hand over the tableau to Ashram. Please, sir. श्रीमती तारा जौहर जी, Shri Ram Bahadur Rai ji, distinguished guests for this evening function, ladies and gentlemen, it gives me immense satisfaction today
that on this occasion, the 66th Foundation Day of Sri Aurobindo Ashram in Delhi, and also during the year when the entire government is engaged in celebrating the 150th birth anniversary of Sri Aurobindo, the Ministry of Culture could present a delightful tableau at the 26th January parade. We were given a very short notice, otherwise the normal tableau Ministry of Culture are all about color and song and dance and music. We were given a short notice to prepare a tableau which would be somber, which would be reflective of the personality of this great man. And in that short period, our institute, the IGNCA, did a remarkable work in putting together the best artists, the best concept people, and coming up with this tableau, which was widely appreciated, which was admired, and which we are now honored to place at the disposal in perpetuity with the Sri Aurobindo Ashram. This is a matter of immense satisfaction, happiness and joy for us. On behalf of the government, as I just mentioned, we are now celebrating the 150th birth anniversary of Sri Aurobindo. There is a national committee to plan and coordinate the events that would be held during the coming year and the next year and even some part of the year beyond, which will put together a kaleidoscope of programs which will reflect the teachings of Sri Aurobindo, which will reflect his inspiration to India in the 75th year of our independence and in the next 25 years, which in the words of the Honorable Prime Minister is the Amrit Kal, the nectar period of India and this great nation. The National Committee met once on the 24th of December last year and gave certain directions. Presently, the Ministry of Culture is working with the various institutions which have come up to remember the legacy of Sri Aurobindo, the Sri Aurobindo Ashram, the Sri Aurobindo Trust, the Sri Aurobindo Society, the Auroville Foundation, and we have nearly put together the series of events which will be held during this year and the next, which we will now move forward and get approval from another committee which has been constituted specifically for this purpose, which is the National Implementation Committee headed by the Home Minister, and then we will start the functions, the programs in right earnest. In the meantime, as I have communicated to all the office bearers of the society, the ashram, the trust, the foundation, if there are other events which these institutions wish to do at their level, we will provide all support, even though the final program has not yet been approved. But given the fact that the National Committee has given a roadmap for celebrating this entire program, so we will provide all support for that. And I am in touch with Tara Didi on this. I am in touch with Jayanti Ravi and also Maitri Prasad ji. And also, this is the desire of the Honorable Prime Minister himself, that why should we restrict the events and the programs only to those institutions which carry or which are part of this ecosystem. We should go even beyond and discuss the proposals from other bodies and institutions. And it is a matter of great pleasure for me that there are so many institutions in this country which want to join in this celebration, and we are also bringing them together. So in this 150th year of Sri Aurobindo, we will resuscitate his memory, we will revive his teachings, we will rejuvenate his inspirations, and hopefully we will bring the message clearly and starkly to, most importantly, the young generation of India today, which has, for a number of reasons which one cannot get into here, has basically become
a bit delinked from the great traditions of this nation. And we hope that we will kindle in this younger generation a spark of love, affection, and respect for the memory of Shri Aurobindo. With those words, I once again wish to congratulate Tara Didi and the Aurobindo Ashram Delhi on the 66th Foundation Day of the Ashram. And we hope that the tableau which we have presented to you today will forever be a part of this great ashram and will continue to inspire everyone who comes here either for visiting or for staying there for various courses or who just happens to be passing through. Thank you very much. Thank you, Sri Govind Mohan Ji. Now, Sri Ram Bahadur Rai Ji will felicitate Tara Didi. Thank you. I invite Dr. Ramesh Bijlani, one of our senior sadhaks, as well as a writer and an inspirational speaker, to address us now. आदरणीय श्री गोविंद मोहन जी, आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, हमारी अपनी तारा दीदी, वैसे तो सभी हमारे अपने हैं, कोई पराया नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपनी है। भाइयों और बहनों, क्षमा कीजिए मैं सबका नाम नहीं ले रहा, बहुत महानुभाव यहाँ पे उपस्थित है। भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, और यदि सबको इकट्ठा ही संबोधित करना हो तो कह सकता हूँ श्री माँ के प्यारे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन ऑफ द स्वीट मदर, और ऑल ऑफ यू ब्यूटीफुल सोल्स। आज जैसे दिन रोज़ रोज़ नहीं आते। इतनी बड़ी संख्या में विशिष्ट अतिथि इस पवित्र भूमि पर एकत्र हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 सुअवसर मनाने के लिए। पहला, यह सुंदर झांकी जो आप में से कईयों ने देखी होगी गणतंत्र दिवस की परेड में, उसे अभी आपने देखा कि संस्कृति मंत्रालय की ओर से श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा को भेंट किया गया है। दूसरा, तारा दीदी को अभी हाल ही में भारत सरकार ने पद्मश्री प्रदान किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वो इनको बिना मांगे दिया गया। कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई नॉमिनेशन नहीं, और वास्तव में कोई भी पुरस्कार मिलने के लिए वही ठीक तरीका और सबसे अच्छा तरीका होता है। यदि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुद मांग के ये कहें कि मैं इसके योग्य हूँ और फिर इससे बात करो, उससे बात करो, ये करो, वो सब किया जाए तो पुरस्कार का कोई महत्व नहीं रहता, और तारा दीदी कभी ऐसा नहीं करेंगी। और उन्होंने क्या किया है, उनका योगदान क्या रहा है, उसके लिए कोई ज़्यादा आंकड़ों की ज़रूरत नहीं है। 8 साल की उम्र में पांडिचेरी चली गई थी और वहाँ लगभग 30 साल श्री माँ के नेतृत्व में उन्होंने सीखा, सिखाया और अपनी साधना की।
और उसके बाद पिछले लगभग 50 वर्ष से यहाँ इस आश्रम में आ गई हैं और इसका नेतृत्व कर रही हैं। और इनके ही नेतृत्व में कई चीज़ें हुई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो भी इन्होंने किया है उसमें ख़ास ध्यान रखा है पूरे देश में जो पिछड़े इलाके हैं, जिसमें डिसएडवांटेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, जहाँ बच्चों को ठीक तरह शिक्षा नहीं मिलती, वहाँ से बच्चे किस तरह से यहाँ आएँ और अपने एक नया विकास कर सकें, जिससे कि उनको जीवन में एक हेड स्टार्ट मिल जाए और जो उनका हैंडीकैप था वो दूर हो सके। उसके लिए यहाँ पे 1989 में 1989 में ही उन्होंने शुरू कर दिया था यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग, और कई 100 विद्यार्थी लड़के लड़कियाँ यहाँ आकर उस तरह से ट्रेनिंग लेकर और अपने अलग अलग जगह इस्टेब्लिश हो गए हैं। और न केवल इस्टेब्लिश हुए, जहाँ भी गए हैं वहाँ उन्होंने नाम कमाया है कि जो चीज़ उन्होंने यहाँ ट्रेड सीखा वो तो ठीक है, लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनके चरित्र पे एक ऐसी छाप है जो कोई मिस नहीं कर सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो पूरी करते हैं, पंक्चुअल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, टाइम को ठीक तरह से मैनेज करते हैं। लेकिन सारे बच्चे यहाँ नहीं आ सकते। पूरे देश में कई स्कूलों में जो बच्चे इस तरह से पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पॉन्सरशिप्स देना यहाँ से, और छोटे पीरियड्स के लिए यूथ कैंप्स, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स हमारे हिल सेंटर्स में, ये सब ऑर्गेनाइज़ किए इनके ही नेतृत्व में। और देश का एक बहुत रिमोट पार्ट ट्राइबल बेल्ट में, उड़ीसा में केचला में एक ऐसा स्कूल शुरू किया है जहाँ पे अब काफ़ी बच्चे उस स्टेज तक पहुँच गए हैं कि कॉलेज में पहुँच गए हैं, और वो ऐसी जगह है जहाँ अभी तक कोई स्कूल गया ही नहीं था। ये जो जनरेशन औरोमीरा विद्या मंदिर केचला में जा रही है स्कूल में, वो पहली जनरेशन है जो स्कूल जा रही है। और इन अ वे अच्छा है कि वो वहाँ पे रहते हैं जहाँ उनको शहरों की हवा नहीं लगी है, और उसका रिज़ल्ट ये है कि वो बहुत जल्दी अच्छी बातें सीख लेते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम हैं, और उनमें से सारे ही लगभग 4 भाषाएं बोलते हैं। अपनी भाषा तो बोलते ही हैं, उसके सिवाय हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी काफ़ी अच्छी तरह बोलते हैं। ये सब कुछ उन्होंने वहाँ सीख लिया है। पूरा हवन कर सकते हैं उनमें से कई बच्चे 8वीं 10वीं क्लास के, संस्कृत के मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो ये सब वहाँ पे हो रहा है। और उसके सिवाय बड़ों को भी भूली नहीं है, उनके लिए स्टडी कैंप्स और ये सब जो है, तो गिनता चला जाऊँ तो बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन उनका योगदान जो है वो छिपा नहीं है किसी से, सब देख सकते हैं। और ये सरकार ने भी नोटिस किया, उसके लिए हम आभारी हैं। और उनको जो ये पुरस्कार मिला है उसकी इनको कोई आवश्यकता नहीं थी, उसके लिए नहीं कर रही थी, लेकिन अगर पुरस्कार मिलता है तो कई औरों को एनकरेजमेंट मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, वो भी उसी तरह का काम करने की, निस्वार्थ भाव से काम करने की प्रेरणा मिलती है उनको। तीसरी चीज़ जो आज हम मना रहे हैं वो है इस आश्रम का 66वां स्थापन दिवस। और उसको मैंने पवित्र भूमि क्यों कहा, उसको समझने के लिए हमें यहाँ के जो संस्थापक थे जिन्होंने 66 साल पहले इसको फॉर्मली इस्टेब्लिश किया, उनके बारे में थोड़ा बोलना आवश्यक है। श्री सुरेंद्र नाथ जौहर, जिनको हम सब चाचा जी बोलते हैं, लगभग वो 16 साल के ही थे तो उन्होंने महात्मा गांधी का एक भाषण सुना, और उस भाषण में गांधी जी ने कहा कि देश का जो युवा वर्ग है उनको कुछ वर्ष के लिए बाकी सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और देश की आज़ादी में कूद पड़े। अब गांधी जी जैसे महापुरुष भी यदि ऐसी कोई बात कहें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसा करेंगे नहीं, और अगर कुछ करना चाहेंगे भी, क्योंकि द यूथ आर आइडियलिस्टिक बाय नेचर, तो उनके माता पिता शायद उनको मना कर देंगे। लेकिन चाचा जी वो व्यक्ति थे जो 1921 में जब केवल 18 साल के थे तो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े, और तब तक उसमें रहे जब तक कि देश आज़ाद नहीं हुआ। चाहे कितना भी दुख सहन करना पड़ा, उन्होंने सरकार को, ब्रिटिश सरकार को सरेंडर नहीं किया। वो कहते थे मेरा नाम ही मैंने सुरेंद्र नाथ इसलिए रखा है, उन्होंने अपना नाम वो खुद रखा था। उनका जो जन्म के बाद नाम रखा गया था सिकंदर लाल रखा गया था, तो उन्होंने अपने नाम बदल के सुरेंद्र नाथ इसलिए किया कि ये मिलता जुलता है विद सरेंडर नॉट, तो मैं सरेंडर नहीं करूँगा ब्रिटिश सरकार को, इसीलिए उन्होंने ये नाम रखा। तो
लगभग 25 साल आज़ादी की लड़ाई में रहे 1947 तक, और उस पीरियड में कई बार जेल गए, कई जुलूसों में पार्ट लिया। एक जुलूस में तो गोली लगते लगते बचे, जाको राखे साईं मार सके न कोई, वो बात है। और जेल में टॉर्चर किया गया, और पीठ पे जो लाठियाँ लगी, पैरों में जो बेड़ियाँ पड़ी रहती थी कई हफ्ते के लिए, उससे जो घाव हुए, उन सब घावों के निशान, स्कार्स, आजीवन उन्होंने उनके शरीर पे थे। आज़ादी की लड़ाई में खुद तो उन्होंने सफ़र किया ही, लेकिन कई और काम भी होते हैं। और हालांकि वो जब दिल्ली में आए थे तो लगभग बिल्कुल कुछ पैसा नहीं था, लेकिन गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो रिज़ल्ट ये हुआ कि उन्होंने बिज़नेस शुरू किया, बिज़नेस सफल हुआ। और 1930s में जब इस इलाके को दिल्ली से बाहर माना जाता था, माइलस्टोन्स होते थे। यदि आप कुतुब मीनार या मेहरौली वाली साइड से कनॉट प्लेस की तरफ जा रहे हैं तो लिखा होता था दिल्ली से 20 माइल्स अवे, उस तरह के माइलस्टोन्स होते थे, दिल्ली से बाहर माना जाता था। उस समय उन्होंने यहाँ पे ये ज़मीन ली, और क्योंकि दिल्ली से इतना दूर थी, सरकार की नज़रों से ज़रा दूर थी, तो आज़ादी की लड़ाई में और भी कई तरह के काम होते हैं। कुछ लिटरेचर छापना होता है चोरी छिपे, किसी स्वतंत्रता सेनानी को अगर छिपा के रखना हो तो छिपा के भी रखना पड़ता है। तो वो सब काम भी इस पृथ्वी पर, इसी स्पॉट पे, लगभग वहीं पे जहाँ ये मेडिटेशन हॉल है, वहाँ ये सब काम भी हो चुके हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये पवित्र भूमि है। और जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो चाचा जी को एक और फैसला करना था, बड़ा फैसला। एक फैसला पहला वो कर चुके थे 18 साल की उम्र में, कि मुझे आज़ादी की लड़ाई में कूदना है। दूसरा फैसला करना था अब 1947 में कि लीडर बने या कुछ और करें। अब उन्होंने फैसला किया कि लीडर नहीं बनना है। और वो फैसला क्यों किया? क्योंकि देश आज़ाद होने से 8 साल पहले 1939 में वो श्री माँ और श्री अरविंद को देख चुके थे। और वो कैसे हुआ? ये तो बहाने बनने होते हैं। डेस्टिनी हैज़ अ मिलियन वेज ऑफ फुलफिलिंग इटसेल्फ। तो चाचा जी और उनके एक मित्र डॉक्टर इंद्रसेन देश के दौरे पे निकले थे, और जब मद्रास पहुँचे, जिसको आजकल चेन्नई बोलते हैं, तो किसी ने उनको बताया कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पौंडीचेरी है, वहाँ पे एक आश्रम है, आप चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो चाचा जी लिखते हैं अपने मेमोइर्स में कि हमने कहा ठीक है, चलते हैं, वहाँ जो गुरु है उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, और हम फॉरेन रिटर्न भी कहलाएंगे। फॉरेन रिटर्न क्यों? क्योंकि बाकी के भारत पे तो अंग्रेज़ों का राज था, पौंडीचेरी में फ्रांस का राज्य था, तो फॉरेन रिटर्न कहलाएंगे। गए वहाँ तो ढूंढने लगे आश्रम, कहाँ है आश्रम? उन्होंने कहा यहाँ आश्रम है, न शिक्षा न दीक्षा न भजन न कीर्तन न हवन न यज्ञ, और वेशभूषा भी कोई विशेष नहीं है, ये कैसा आश्रम है? तो बताया गया कि यही है आश्रम, यदि आप यहाँ पे वेट करेंगे तो मदर आएंगी, सब मेडिटेट करते हैं शाम को, आप वहाँ वेट कर सकते हैं। तो कई लोग वहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे, ये भी वहाँ पहुँच गए और प्रतीक्षा करनी शुरू की। और जब श्री माँ एकदम पंक्चुअली सीढ़ी से नीचे आने लगी मेडिटेशन हॉल में, तो ये दोनों जो मित्र थे, वो उनको दोनों को यही लगा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई अभी स्वर्ग से उतरी हुई परी लगती हैं। और वहीं पे उनका टोटल सरेंडर हो गया, सरेंडर नॉट सरेंडर्ड हिमसेल्फ, और अपने बच्चों को वहाँ छोड़ना शुरू किया। और इसी तरह से तारा दीदी 8 साल की उम्र में पौंडीचेरी पहुँच गई। तो उनको क्योंकि ये अनुभव हो चुका था, तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि देश आज़ाद होने के बाद लीडर नहीं बनना है, ये जो ज़मीन है इसको श्री अरविंदो श्री माँ के काम के लिए इस्तेमाल करना है। और जब श्री माँ ने उनको परमिशन दी कि यहाँ पे आप श्री अरविंदो आश्रम दिल्ली ब्रांच बनाइए 1956 में, तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। असीम खुशी का अनुभव किया उन्होंने। और ये जो थी, श्री माँ ने नाम भी दिया इसको, श्री अरविंदो आश्रम दिल्ली ब्रांच। और ये एक पहला स्थान था, और अभी तक केवल एक ही स्थान है जो श्री अरविंदो आश्रम पौंडीचेरी की ब्रांच है। सेंटर्स तो हज़ारों खुल गए सारी दुनिया में, लेकिन श्री अरविंदो आश्रम पौंडीचेरी की ब्रांच संसार में केवल एक है, और वो यही है। उसके बाद एक और चीज़ पहली बार यहाँ हुई। लगभग 1 साल के बाद श्री माँ ने कहा कि उन्होंने श्री अरविंद के रेलिक्स दिव्यांश उनके संभाल के रखे हुए हैं, और पहली जगह जो वहाँ
जो उन्होंने भेजे उन रेलिक्स को वो यही थी, और वही रेलिक्स जो हैं यहाँ जो श्राइन है हमारी, उसमें जो क्यूब है बीच में, उसके बेस पे वो रेलिक्स हैं। और ये एक पहली बार हुई। और जो लोग आश्रम में आते हैं, बाहर हमारे चारों तरफ इतना ट्रैफिक है, कंजेशन है, सब कुछ है। अब तो दिस इज़ हार्ट ऑफ द सिटी, ये कोई रिमोट पार्ट नहीं है वो जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे हो, दिल्ली से बाहर माना जाए। इट्स इन द वेरी हार्ट ऑफ द सिटी। तो वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एंड विद एन आर्टीरियल रोड विच हैज़ सम ऑफ द हैवीएस्ट ट्रैफिक इन दिल्ली। लेकिन जैसे ही लोग आश्रम के अंदर घुसते हैं तो उनसे पूछते हैं आपको कैसा लगा। पहली चीज़ वो बोलते हैं पूछने पे या बिना पूछे कई बार, यहाँ बहुत शांति है। और वो शांति जो है इन्हीं रेलिक्स की वजह से है। अब आज एक तीसरी चीज़ पहली बार हुई है। पहली बार हम श्री अरबिंदो आश्रम पौंडीचेरी की ब्रांच बने, पहली बार यहाँ रेलिक्स आए, और आज पहली बार भारत सरकार ने किसी गणतंत्र दिवस की टैबलो को किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। सब डिसमेंटल होती रही हैं, पहली बार ये टैबलो यहाँ आई है। तो 3 चीज़ें पहली बार हो गई। मैंने इस भूमि को पवित्र भूमि कहा। ये पवित्र तो तभी हो गई थी जब आज़ादी की लड़ाई के लिए यूज़ हो रही थी। यहाँ पे कुछ लिटरेचर छप रहा था, स्वतंत्रता सेनानियों को छिपाया जा रहा था, और चाचा जी यहाँ रहते थे। पवित्र तो तभी हो गई थी। लेकिन आश्रम बनने के बाद और यहाँ रेलिक्स आने के बाद ये केवल पवित्र भूमि नहीं रही, ये एक पूजा स्थल बन गया, ये एक तीर्थ स्थान बन गया। ये एक ऐसा स्थान बनने गया जो साधना के लिए एक सर्वोत्तम स्थान है। सो दिस हैलोड प्लेस, these hallowed precincts were transformed into a place of pilgrimage, a place which is the most appropriate, most suitable place for spiritual quest and for spiritual progress. So this transformation from a Pavitra Bhumi to a Tirth Sthan was after the establishment of the ashram and the relics coming here. अब मैं थोड़ा सा ड्रिफ्ट करूँगा इन स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शन वेरी ब्रीफली। आश्रम बना और चाचा जी ने, तारा दीदी ने इतना काम किया और सब इतना काम कर रहे हैं। इस साल हम श्री अरविंद की 150वीं सालगिरह मना रहे हैं। देश जो है आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, एंड द टू कोइंसाइड टू दैट डे, द 15th of August। तो ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? ये जो 150th एनिवर्सरी है श्री अरबिंदो की और 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, ये तो एक किस्म से बहाने हैं, ट्रिगर्स हैं, एक ऐसे अवसर हैं जो क्रिएट किए गए हैं फॉर रियलाइजेशन ऑफ अ लार्जर मिशन। वास्तव में जो लक्ष्य है वो तो श्री अरविंद श्री मां ने हमें लगभग 100 साल पहले दे दिया था कि लक्ष्य क्या है। और लक्ष्य है चेतना का विकास, राइज इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द ह्यूमन रेस एज ए होल, मानव जाति की चेतना का विकास। विकास तो जो है वो होता ही रहा है, क्रमिक विकास, एवोल्यूशन हैज़ बिन गोइंग ऑन। लेकिन अब वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गई है, ऐसी पड़ाव पे पहुंच गई है व्हेन इट इज़ रेडी फॉर द नेक्स्ट लीप। एक बड़ी एक गति से, तेज़ गति से बदलाव आने वाला है और उसमें हम सब योगदान दे सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको अपनी चेतना के विकास के लिए अभिप्सा भी है और क्षमता भी है। Man is the only creature who has the aspiration for rising in consciousness and also the capacity to do so. And therefore that becomes the unique purpose of human existence. Man can go beyond just feeding and breeding, which are the functions around which the animal life revolves. So मनुष्य जो है उसका ये यूनिक फंक्शन है, और ये ऐसी स्टेज है जब मानव जाति जो है उस ओर आकर्षित होगी बड़ी संख्या में। ऋषि जो हैं हमारे वो तो उस तरफ जाते ही रहे हैं, उन्होंने अपनी चेतना का विकास ऐसा किया कि दे हैव मर्ज्ड विद द डिवाइन। लेकिन अब उस तरह का फिनोमिनन इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑन अ लार्जर स्केल बिकॉज द अर्थ इज़ रेडी फॉर दैट नेक्स्ट लीप। उसका रिजल्ट क्या होगा? इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ह्यूमन नेचर विल चेंज। और ह्यूमन नेचर चेंज हो गया तो संसार चेंज हो गया। इफ इंस्टेड ऑफ बीइंग ड्रिवन बाय द ईगो द ह्यूमन रेस स्टार्ट्स गेटिंग ड्रिवन बाय लव, द होल प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। और वास्तव में जो सारे
संसार में हमारी समस्याएं हैं, the unique problems of human existence such as inequality, injustice, misery and suffering, they all basically flow from one single root cause, and that is the level of consciousness which is primarily ego driven. वो अगर चेंज हो गई तो ये सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी. सो हम ये जो सब कर रहे हैं उसके पीछे जो लक्ष्य ये है कि संसार बदलेगा, लेकिन हम चाहते हैं ज़रा जल्दी बदले. तो एक कुल छोटे छोटे कदम है, छोटे छोटे प्रयास है, लेकिन इसी तरह के कई छोटे छोटे कदम और छोटे छोटे प्रयास हो रहे हैं पूरे संसार में और बढ़ेंगे. सबको नज़र आ रहा है बहुत बुरा भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ बहुत अच्छा भी हो रहा है. तो इस तरह के प्रयास पूरे संसार में हो रहे हैं और इस तरह के कदम, इस तरह के प्रयास अधिक बढ़ेंगे संख्या में, उनकी गति बढ़ेगी, उसी से संसार बदलेगा. इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ. सुनने के लिए धन्यवाद. Thank you, Bijlani ji, for this enlightening address. I now invite Shri Ram Bahadur Rai ji, President of the Indira Gandhi National Center for the Arts, to address us. आदरणीय तारा जी और मित्रों, रमेश बिजलानी जी ने कहा कि तारा जी को भारत सरकार ने पुरस्कार दिया. रमेश जी, पुरस्कार और सम्मान में फर्क होता है. पुरस्कार किसी को किसी अच्छे काम के लिए दिया जाता है और सम्मान चल करके उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है जो महानता की श्रेणियों पर ऊंचा उठता चला जाता है. तो भारत सरकार ने तारा जी को पुरस्कार नहीं दिया है. पुरस्कार बहुत छोटी चीज़ है. भारत सरकार स्वयं चलकर इनके पास आई और इनको सम्मानित किया है. राष्ट्रपति भवन में जब आयोजन होगा तो राष्ट्रपति इनको स्वयं सम्मानित करेंगे. तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि तारा जी का जो सम्मान है वह उन लोगों का सम्मान है जो श्री अरविंदो के सपनों को पूरा करना चाहते हैं. और श्री अरविंद के सपने के बारे में रमेश बिजलानी जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया. मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा इस अवसर पर. ये झांकी अब यहाँ रहेगी और मैं आग्रह करूँगा आश्रम से कि जहाँ आपको ठीक लगे, लेकिन इसको आने वाली पीढ़ियाँ इसको देखें, इसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए. एक ऐसा इसके ऊपर छप्पर बन जाए, आसपास एक गैलरी बने और लोग इस झांकी को उसी तरह से देखें जैसे किसी मंदिर की परिक्रमा की जाती है. जब इसकी कोई परिक्रमा करेगा तो पाएगा कि 1907 के श्री अरविंदो इसमें हैं. जब वो वंदे मातरम में लिखते थे और वंदे मातरम में जब लिखते थे तो अंग्रेज की सरकार कांपने लगती थी और क्रांतिकारी उत्साहित होते थे. और उसी 1908 के एक लेख के कारण वे बंदी हुए. लेकिन अगर आप श्री अरविंदो का वो काल देखें तो वे कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मैं इसमें से निकल जाऊँगा. उन्होंने अपने कारावास की कहानी लिखी है
और उसी कारा जीवन में उनको श्री कृष्ण के दर्शन हुए। वो चित्र भी इसमें है। इसमें जो नहीं है, जो होना चाहिए, वह एक और बड़ी घटना है श्री अरविंदो के जीवन की, और जिसकी बहुत उपेक्षा भी हो जाती है। और वो ये है कि 1942 में उस समय की ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आए थे। पूरे भारत का दौरा किया, उन लोगों से मिले जो स्वाधीनता संग्राम के नायक थे, और लोगों से भी मिले। स्टेफर्ड क्रिप्स रेल से लाहौर भी गए, कराची भी गए, और उसके बाद एक क्रिप्स प्रपोजल आया। उस क्रिप्स प्रपोजल पर केवल हिंदुस्तान का एक व्यक्ति था, और वो थे श्री अरविंदो, जिन्होंने तुरंत अपील की कि आप क्रिप्स प्रपोजल को मान लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर क्रिप्स का प्रस्ताव श्री अरविंदो की सलाह पर मान लिया गया होता तो भारत का बंटवारा नहीं होता। लेकिन हमारे नेताओं ने क्रिप्स के उस प्रस्ताव को नहीं माना, और जो हुआ वो हम सब जानते हैं। श्री अरविंदो से मैं पहली बार स्वयं जुड़ा श्री अरविंदो की जन्म शताब्दी में, और जब मुझे पता चला कि श्री अरविंदो की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, तब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र था। तो मैंने 200-250 पेज की एक स्मारिका निकाली, और जब श्री अरविंदो सोसाइटी के चेयरमैन नवजात जी बनारस आए तो मैंने वो स्मारिका उनको दी। कहने लगे कि मैं पूरे देश में घूम कर आ रहा हूँ, किसी विद्यार्थी ने या किसी विद्यार्थी संगठन ने, मैं एक विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उस समय कार्यकर्ता था, उन्होंने कहा कि किसी विद्यार्थी संगठन ने इस तरह की स्मारिका नहीं निकाली है, तो तुम पांडिचेरी आओ, और ये स्मारिका मैं ले जा रहा हूँ, लेकिन तुम आकर के श्री माँ के को अपने हाथ से दो, मैं उसकी व्यवस्था करूँगा। और मैं गया। मैं जब गया और बनारस लौट कर के आया, तो अपने हिंदी के अध्यापक डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह से मैंने कहा कि पांडिचेरी आप भी जाइए, और वे पांडिचेरी गए। और अगर आप में से पता नहीं, मैं नहीं जानता कि कितने लोगों ने, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने श्री अरविंदो की जीवनी लिखी है, और उस जीवनी का नाम है, शीर्षक है उत्तर योगी। और उस जीवनी में वो लिखते हैं कि मद्रास में एक संत थे जिनका शरीर समाप्त हो रहा था। उनका जो शिष्य था उसने पूछा कि आप जा रहे हैं, अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तो वो संत कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, एक उत्तर से कोई महात्मा आ रहा है, वह तुम्हारा भी मार्गदर्शन करेगा, इस देश का भी मार्गदर्शन करेगा, और इस मानवता का भी मार्गदर्शन करेगा। उनका आशय श्री अरविंदो से था। और सचमुच रमेश जी ने सही कहा कि ये पवित्र भूमि है, क्योंकि इस पवित्र भूमि पर मैं बहुत दिनों से आता हूँ। जौहर साहब जब थे तब भी आता था, और तब तारा जी हम अपनी गाड़ी लेकर के गेट नंबर 4 से आते थे, और यहाँ बैठकर थोड़ी देर सब्दा से कुछ खरीद कर और चला जाता था। जौहर साहब का जो संस्मरण, उनके बारे में जो
रमेश जी ने बताया है, जो छोड़ दिया है वो मैं बताना चाहता हूँ। तारा जी उस जौहर साहब की पत्नी की, यानी जौहर साहब की बेटी हैं तारा जी, लेकिन तारा जी की माता के बारे में कम लोगों को मालूम है। और जौहर साहब ने अपने मेमोयर में लिखा है, 2 चैप्टर लिखा है उन्होंने, माई वाइफ, और कुछ व्यंग में भी लिखा है, कि कुछ विनोद में भी लिखा है, और लिखा है कि मैं अपनी पत्नी से थोड़ा सा सुपीरियर महसूस करने के लिए मैं गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो गया, जेल भी हो आया। एक दिन जब वो आए घर, तो बच्चे खेल रहे थे और तारा जी की माता जी नहीं हैं। जौहर साहब खोज रहे हैं कि कहाँ गई हैं। देर हो गई, रात में, टाइम तो नहीं लिखा है उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि रात को 10-11 बजे के आसपास थाने से उनको टेलीफोन आता है कि आपकी पत्नी सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार हो गई हैं, उनके लिए बिस्तर लेकर के आप थाने आइए। ये गए और उनको 6 महीने की सश्रम कारावास, यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुआ, और वो लाहौर में महिलाओं की जेल में भेज दी गई। जौहर साहब लाहौर गए, अपनी ससुराल गए और अपनी मदर इन लॉ से कहा इन्होंने कि आपकी बेटी आजकल लाहौर में है। तो उनकी माता ने कहा कि वो लाहौर में और मुझसे तो मिली नहीं। तो कहा कि नहीं, वो जेल में है। उनकी माता को सदमा लगा, क्योंकि तब और आज भी पॉलिटिकल लोगों को छोड़ दिया, आजकल पॉलिटिकल लोग भी जेल नहीं जाते। जेल कौन जाता है? जो जुर्म कर जेल में जो सुविधाएं मिल सकती थी, जो घर से खाना हो सकता था, वो सब दिया। जब वो जेल से छूट करके आई तो जौहर साहब ने श्री माँ के चरणों में बाद में सरेंडर किया होगा, अपनी पत्नी के आगे पहले सरेंडर किया और कहा कि मैं अपने को सुपीरियर समझता था, अब तुम सुपीरियर हो। उस महान महिला की बेटी हैं तारा जौहर। और इसलिए उस तारा जौहर के सम्मान को हम सब अपना सम्मान माने। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्थान है, इसके बारे में बहुत आपको किस्से में सुना सकता हूँ, जिसका ये समय नहीं है। मैं ये कहूँगा कि श्री अरबिंदो की 150वीं में इस आश्रम से कम 2 काम होने चाहिए। एक, जौहर साहब का मेमोयर जो है वो केवल अंग्रेजी में ना हो, हिंदी में भी हो और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी हो। और मोटा ग्रंथ ना हो,
उसको जो नई पीढ़ी जिसको पढ़ सके, नई पीढ़ी जिससे प्रेरित हो सके, वैसी छोटी किताब हो। और इसलिए उस किताबों की आप एक योजना बनाएं जो 50 पेज की हो, 75 पेज की हो, और उसको लोगों को, नई पीढ़ी को दिया जा सके। क्योंकि जौहर साहब ने दिल्ली आने के बाद आर्य समाज आंदोलन में वो शामिल हुए। और आप यहाँ बैठे हुए लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। जौहर साहब ने स्वामी श्रद्धानंद के साथ काम किया था। श्रद्धानंद उन लोगों में से थे जिनके चरणों में महात्मा गांधी की भी श्रद्धा थी। तो मैं निवेदन करूंगा कि जौहर साहब की जीवनी को छोटे छोटे हिस्सों में आप करें, और उसी तरह से क्रिप्स मिशन पर श्री अरविंदो ने जो कहा उसकी एक छोटी किताब बननी चाहिए। और इंडियन रिनेसा एंड अदर एसेज, ये पुस्तक इस झांकी में यहाँ अंकित है। ये ऐसी पुस्तक है जो पश्चिम में जो भारत के बारे में सवाल उठ रहे थे, उन सवालों का दार्शनिक स्तर पर, तार्किक स्तर पर, ऐतिहासिक और पौराणिक स्तर पर श्री अरविंदो ने जवाब दिया है। इस पुस्तक का पहला लेख है, क्या भारत सभ्य है? पश्चिम में ये सवाल खड़ा हो रहा था और श्री अरविंदो ने जवाब दिया है कि पूरी दुनिया जब जंगली थी तब भारत सभ्य था। तो मैं इस अवसर पर ताराजी को के सम्मान को, इस झांकी के अवसर को, और इस जौहर साहब के कारण इस आश्रम की स्थापना के 66वें वर्ष पर हमें यहाँ आने का अवसर मिला। मैं इसके लिए अपने को भी, आप सबको भी धन्य मानता हूँ और मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। एक बात ज़रूर मैं कहना भूल गया था। यहाँ बैठे हुए हैं हमारे मित्र अनिर्वाण गांगुली और उनकी पत्नी, इनकी उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है। Thank you, Sri Ram Bahadur ji, for your most inspiring address with so much of insights. We are drawing close to the conclusion of this event. We shall conclude the event with the recitation and singing of Vande Mataram, in which all of us will join in. But before that, I take the pleasure of delivering the vote of thanks. The ashram receives the tableau presented by the Government of India with gratitude. We are grateful for the continued support from the Prime Minister's Office, the Ministry of Culture, and the various ministries for according the apt recognition of Sri Aurobindo and his vision for the nation and the world at large. We thank all our dear guests from the Indira Gandhi National Center for the Arts and other organizations, as well as our ashram friends who have come away from their pressing occupations to be with us, basking in the calm ambience of our ashram during this hour of sunset. Gratitude to our ashram family for rallying together for this occasion
taking care of every detail and making it happen. Gratitude also goes to all our support staff who have worked tirelessly behind the scene in the last many days for this moment to materialize. Gratitude to Tara Didi for being who she is in driving the ashram forward. Her formidable energy of conviction and dedication to the ashram's mission of actualizing the Mother's and Sri Aurobindo's vision for this nation and for humanity is inspirational. Most importantly, we bow before the Divine in gratitude for bringing us all within the ambit of His presence in this ashram. I welcome Tara Didi to the dais to recite Sri Aurobindo's rendering of Vande Mataram in English. This will be followed by the singing of Vande Mataram by our ashram youths. Vande Mataram. Translation by Sri Aurobindo of the original Vande Mataram song. Mother, I bow to thee, rich with thy hurrying streams, bright with thy orchard gleams, cool with the winds of delight, dark fields waving, mother of might, mother of free, glory of moonlight dreams over thy branches and lordly streams, mother, giver of ease, laughing low and sweet, mother, I kiss thy feet. Speaker sweet and low, mother, to thee I bow. Who had said thou art weak in thy lands, when the swords flash out in 70 million hands and 70 million voices roar thy dreadful name from shore to shore? With many strengths who art mighty and stored, to thee I call, Mother and Lord. Thou who savest, arise and save whoever her foemen drave back from plain and sea and shook herself free. Thou art wisdom, thou art law, thou our love, thou our heart, our soul, our breath, thou the love divine, the awe in our hearts that conquers death. Thine the strength that nerves the arm, thine the beauty, thine the charm. Every image made divine in thy temple is but thine. Thou art Durga, lady and queen, with her hands that strike and her swords of sheen. Thou art Lakshmi, lotus-throned, and the muse 100-toned, pure and perfect, without peer. Mother, lend thine ear.
rich with thy hurrying streams, bright with thy orchard gleams, dark of hue, O candid fair, and thy soul with jewelled hair, and thy glorious smile divine, showering wealth from well-stored hands. Mother, mother mine, mother sweet, I bow to thee. Mother, great and free. Come
वन्दे मातरम् श्यामला सरला सुस्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे Thank you, everyone, and have a very pleasant evening. Thank you very much for gracing this occasion.